why are you here? You need to know why. जी, ऐसे आ गए थे, और ऐसे आ गए थे, फिर वो मंगनी के वक्त भी था कि बस मुझे बिठा दिया था यहाँ पे, और वलीमे के दिन बैठे होंगे, मुझे क्यों आया मैंने पता नहीं, मुझे बिठा दिया था यहाँ पे। जी, why? सोचा इसके ऊपर, why are you here? Okay, that's good. Anybody else? Anybody else? Boys at the back, जो आर्ग्यू कर रहे हैं, जगह से हटो, करिए नहीं आवाज आता मेरे। जी, why are you here? क्यों आए हैं आज अब यहाँ पे? अभी क्यों हैं यहाँ पे? कोई जबरदस्ती तो लेके नहीं आया ना? नहीं। The reason why I'm asking you is like you need to know your why. Whatever you do in life, आप जिंदगी में जो भी फैसला करते हैं, आपका why बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपका why क्लियर नहीं होगा, तो while acquiring that particular goal, you will lose track of it. You will be deviated. आप शायद second thoughts आपके दिमाग में आ जाएं कि आप क्यों कर रहे हो, because आपको social pressure बढ़ गया है, and especially it comes when you are following religion. Maybe you decided to leave certain things, or maybe you decided to keep a beard, maybe you decided to seek knowledge, maybe you decided to do hijab, or maybe you will do something. But if your why was not clear, you will never be able to be on it, because of the fact that you are not sure why you were doing it in the first place. आप कॉलेज आए हो और आपको नहीं पता कि आपने फना फील्ड क्यों चूज करनी है, and along the way when things become difficult, you start to have second thoughts because you don't know why you were doing it in the first place. इसलिए it's very important for you to know your why. जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले ये याद रखिए, ऐसा नहीं होगा कि मैं यूनिवर्सिटी में आ जाऊं और मैंने आके यूनिवर्सिटी में आके मैंने जो है बस एडमिशन ले लिया, और फिर यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं ड्रेस कोड ये है, फला ये चीज ये है, so and so rules ये है, and it's like why should I be following it? Because you took that decision, regardless of that being an impulsive decision, regardless of whatever decision, आप जब किसी चीज का हिस्सा बन जाते हो तो आपको उसके साथ साथ उसके चीज रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो करने होते हैं। Same thing when it comes to our religion. You need to be able to understand, yes, we are born in a Muslim family. That does not guarantee paradise for us, just to be able to understand this, but we need to be able to know why our religion is the best. It is not the best because we say it's the best. It's not because हमारे माँ बाप हमें कह रहे थे because it was the best. But we need to understand why it was better. For that, we need to be able to educate ourselves. Unfortunately, हमारे माशरे में नहीं educate किया जाता। मैं जब college life में था, आप लोग की age में था, तो not to be able to just say this for no reason, but मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ because I do understand the kind of pressure that you guys go through. I was the only son. I had two older sisters. My father was usually abroad, and मैं बहुत एक disturbed एक स्टेज से गुजर रहा था, एंड उस डिस्टर्ब स्टेज से गुजरने के नतीजे में मेरी लाइफ में कुछ डिसीजन हुए जिसकी वजह से मैंने रियलाइज किया कि मैंने कुछ गलत फैसले किए हैं। I used to get into fights, I used to get into bad company, I used to be away from home, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जिंदगी में सिखा दिया दोस्तों की असलियत वगैरह। एंड मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में क्या पर्पस है, क्या करना है, क्या नहीं करना। जब मैं यूनिवर्सिटी के बैचलर्स में आया तो उस चीज को जो मैं चाह रहा था कि शायद मुझे मजा आ रहा होगा, मैं एंजॉय कर रहा हूँगा, इट्स गोना गिव मी पीस, या मैं ये करूंगा वो करूंगा तो मुझे मजा आएगा, मुझे फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एग्जॉस्ट कर दिया उस चीज ने। क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आज आप एंजॉय करने की सोचते हो, या कहीं पार्टी हो रही होगी, मैं जाऊंगा, कहीं पे कोई डेट मार रहा होगा, फला मेरा भी ख्वाहिश है, मैं सारी मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एक टीनेजर्स के दिमाग में ख्यालात होते हैं, बिकॉज यू हैव दीस फैंटेसीज of how a happy life is going to be, because all of us want to be happy at the end of the day. हम happiness ढूंढ रहे होते हैं, right? But कुछ लोग हैं जिनको फिर बिरयानी की एक प्लेट में happiness मिल जाती है। पर मेरा चूंकि सोशल सर्कल बहुत वो था, मुझे ये था कि नहीं, मुझे वो वाली क्राउड में मेरा अपना दोस्तों का सर्कल था। I studied from a Parsi school, मेरा माहौल डिफरेंट था, मुझे दोस्तों के साथ मुझे इंटरमिंगलिंग करने में, मुझे पार्टी इनविटेशंस में, I was a musician, I was learning music, I was underground performances होती थी, Dave Matthews Band, Metallica, cover, it was all done। आज आपके कोक स्टूडियो मेरे दोस्त चला रहे हैं,
उस जमाने में आप लोग तो फवाद खान को एज एन एक्टर जानते हो, बट आई रिमेंबर हिम फ्रॉम द टाइम नूरी, अली नूर वगैरह, जब ये लोग अंडरग्राउंड जाता। अली नूर जब कमर्शियल हुआ था उससे पहले they used to be a very good English band, and Ali Hamza used to be the lead vocalist, but Ali Noor became more active। तो हमारे लाहौर में और कराची में अंडरग्राउंड पीएसीसी में ये सारे हालात खराब होने से पहले अंडरग्राउंड परफॉर्मेंसेस होते थे, तो they used to play all these covers। and आज of course फवाद खान फ्रॉम एनटीटी पैराडाइम, पहले जो पैराडाइम था फिर वो एनटीटी पैराडाइम बना, फिर बाद में उन्होंने आरओ के साथ फाइनल में जीते, आरओ वाले भी जानने वाले थे, तो इवेंचुअली दे नाउ इज इनटू एक्टिंग। तो देयर इज लाइक ए होल प्रोग्रेशन इंसान गुजरता है। बाय दैट टाइम आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू प्रोग्रेशन। मुझे उस तफरीक की डोज इतनी मिली कि आई वाज लाइक इन्हें कब तक चलेगा ये, क्या तफरीक करता रहूंगा, कहीं भी देखा तो दोस्तों ने बैठे तो वो बैठे बस वो बना रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठा तो एक दोस्त की मैंने हालत देखी, लिटरली मैंने एक दोस्त की हालत देखी, बिकॉज़ उसने कोकेन की बहुत हाई डोज ले ली थी, तो दूसरे दिन जो है वो कॉलेज में बस यूं करके बैठा हुआ, एंड फॉर 2-3 आवर्स ही वाज जस्ट सिटिंग अलोन। तो हम सब दोस्त आए, हमने बोला कोई करीब भी नहीं जा रहा था, तो अगर इसके पास जाएंगे तो हमारा भी भांडा टूट जाएगा, तो हम उसके पास गए, हमने उसको हाथ में बोतल दी, उसको हाथ में बोतल दी, आगे चला, उसके हाथ से बोतल गिर गई। अच्छा, उसकी गर्लफ्रेंड जो इसने बोला इसको ही इज बिकमिंग अ न्यूसेंस, इसको नहीं पता, अब वो सिगरेट मुंह में ले रहा है, उसकी गर्ल क्यों हो रही थी, ही डिड नॉट इवन रियलाइज इट। अच्छा, मैं ये सारी चीजें जिंदगी में आसपास दोस्तों की भी ऑब्जर्व कर रहा था, मेरे अंदर भी एक एम्प्टीनेस बढ़ती जा रही थी, and I did not realize what I was doing, and I reached to a certain point that it was 4 a.m. in the morning। अब तो नहीं है, बट हमारी सर्कल में पहले there used to be clubs over here, I'm talking about 2003, that was the time when I was going through the change, and it was 4 a.m. in the morning, and right in front of me people were on the dance floor, ठीक है, and I was just sitting in one corner and I was just observing them, and मैं 4 बजे सुबह के उनको मैं देख रहा हूँ, I was not able to understand why they were doing it। हमारे पास एक कल्चर है ना, ए लेवल्स के बच्चे कर रहे होते हैं, ठीक है, नादानी से कर रहे होते हैं, हमारे पास 25-30 साल के लोग भी पार्टी कर रहे होते हैं, like teenagers, because they haven't been able to go through that past that stage कि जिन्हें उन्होंने पार्टी करनी है। The idea of fun is basically dictated to them। For me now the idea of fun is totally different। जब आप एज में बड़े हो गए तो आप बोलोगे थोड़ा टाइम अलोन हो, थोड़ा सा सुकून हो, जिंदगी में इतनी तेज जा रही है, थोड़ा आपके अंदर इस्तिराब कम हो, आपके अंदर सुकून की हालत है। And I was not able to understand why they were doing it। मतलब why the cardio sessions, why think what exactly, it was not exciting me, but I was like getting turned off by that। And during that entire time Allah blessed me with an opportunity not to be able to have someone in life, but जब मैं हम लोग I studied from CBM उस जमाने में छोटा सर्कल होता था, बहुत ही सिलेक्टेड क्राउड से, अब तो हर किसी को लेना शुरू कर दिया है। मैं जब वहाँ पे पढ़ाने के लिए एज ए प्रोफेसर गया तो देखा तो हर वक्त कहीं ना कहीं नीचे बेक सेल हो रही है, कुछ हो रहा है, फना मार्केटिंग डिपार्टमेंट कर रहा है, उसमें हर वक्त बच्चों को एक हल्ला गुल्ला मिल रहा है, एंड इट्स अ कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, टू बी ऑनेस्ट इट्स अ कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज़ यस एट वन पॉइंट वेदर वी डिसएग्री और एग्री, फन अच्छा जरूरी है, बट आपके डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इट सो हैपेंड कि मैंने बोला कि मुझे शो से बाहर निकलना है, वो आ रहे हैं, चलो यार खाने पे जा रहे हैं दोस्त सब, चलो खाने पे चले गए, चलो यार बाहर सिगरेट पीने चलते हैं, चलो चले गए, चलो यार वहां पे जाते हैं यार दोस्त के पास है ना डोप आ गई, चलो चलते हैं, सब चले गए। पर ये कब तक चलेगा? आई एम नॉट गोइंग टू बी अ टीनेजर ऑल माय लाइफ, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट द वेरी फर्स्ट पीपल जो सफर कर रहे थे वाज माय मदर, जो मेरी माँ परेशान थी कि बेटा 3 दिन हो गए तुम घर नहीं आए, आई वाज लाइक विद माय फ्रेंड्स, क्या है फोन रख दिया, अजीब बात, परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि because I was very aggressive, I was would not be take, because throughout my school life I was a very good student, I was house captain, I was leading 600 boys in my school because of a huge group, and because of me being a decent boy people used to make fun of me, they were not able to bully me, okay, but they were able to make fun of me, and when I graduated from school I was like मैं किसी की बोली बर्दाश्त नहीं करूँगा, I became aggressive, I formed a gang, ठीक है, उस जमाने में नाम नहीं लूंगा, बैड बॉयज करके एक बॉय होता था, लेकिन उसकी हरकत इस तरह की उल्टी सीधी होती थी। इवेंचुअली वो इतना एम्प्टी हुआ मैं कि आई वाज लाइक मुझे इधर से निकलना है, और हमारे अभी भी उतना ही है, एक छोटा सा मुसल्ला होता था नमाज प्रेयर, उधर जाके मैं बस बैठ गया, आई वाज टेकिंग माय टाइम ऑफ, मेरे सामने सिपारे पड़े हुए थे, एंड आई looked at it, I was like आसान तर्जुमे के साथ, उर्दू मुझे नहीं पढ़नी आती थी, बहुत कमजोर था उर्दू में, मेरा उर्दू का मजाक उड़ाया जाता था, अंग्रेजी भी कोई अच्छी नहीं है मेरी, मैंने बोला चलो मैं कोशिश करता पढ़ने की, and I started giving it 1 hour, मुझे मजा आने लगा,
it was like there was this blackness inside me that every time I would prostrate, मैं सजदा करूं तो जमीन उसको खींच ले. Every time I do that, जमीन उसको खींच ले. और I can't explain this because अगर आप जब तक खुद नहीं गुजरोगे आपको नहीं पता चलेगा. I was like कि मुझे यहाँ पे सुकून मिल रहा है और मैं हर एक उस शोरगुल कहीं बैठे हुए गिटार पकड़े हुए हैं, हेलो गुल हो रहा है. स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर इज वेरी लाउड. काउचेज हैं, कैफेटेरिया में 100 लोग बैठ सकते हैं, खाना पीना मिल रहा है. मेरा दोस्त परेशान हो गया, 1 घंटे के लिए कहाँ गायब हो जाते हो. मुझे ढूंढता हुआ आया because he saw that change in me. Because एक बच्चा जो फुल पार्टी कर रहे हैं, डांस हो रहा है, वो हम लोग जो है वो कवर बजाते हुए हेडबैंग कर रहे होते हैं. I literally became like this. I was like, बैठा हूँ हाँ, because I was going through a change. I was going through a change, and my faculty started watching it because मैं जब चलते हुए जा रहा था, I was like because मैं इसे बोलूँ, कुछ लोगों ने मुझे email किया, and they were like, if you can change, we can change too. And they knew for a fact that I did not have popularity issues. Alhamdulillah, I'm not exaggerating. I did not have popularity issues. Okay? There was no party that I was not invited to. Because of course, हम लोग उस ज़माने हमने जो आज how many know मुनीम नवाज? How many know मुनीम नवाज? कोई ब्रांड के डिजाइनर को जानता है? पाकिस्तान का एक ही he's a close friend. उसकी first fashion show में हम लोगों ने मॉडल किया तफरी में. अब वो टाइम ऐसा था कि I was just saying कि नहीं मुझे इस माहौल में नहीं रहना. That 1 hour was my energy booster. That was where I used to take my charge in. वो आगे दूर होते थे कि उसने बैठना शुरू कर दिया. Of course, maybe it did not work for him. But 1 hour was one point where I was educating myself, and I was like, every time I read the Quran, मैं कुरान पढ़ता था और मैं बाहर जाता था और मुझे अजीब सा, everybody goes through that statement. ये नहीं कह रहे कि आप बाहर निकलोगे शायद होगा. This was the experience Allah Subhanahu wa Taala makes you go through. कि Allah gives you that different lens that you go out and you like you see it differently. And I was like although मुझे याद नहीं रहता था मैं कुरान क्या पढ़ता था, लेकिन every time मैं बाहर जाता था तो मुझे वो चीज रिकॉल हो जाती थी जो कुरान में आसान तर्जुमे के साथ थी. And I made it a goal and I made it a practice that I would read it. And it made me decide if I want to know about religion, because there are so many people talking about different aspects, I would make an effort to be able to learn about it. I let that social pressure not dictate to me what I need to be, because I have this one determination. Regardless, आप गलत काम में हो सही काम में, आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए. I am not going to follow what everybody is following. I will have my own identity. Regardless किसी भी काम की बात कर, मैं Islamic terms में नहीं बात कर रहा. आप as a designer हो, you don't want to follow that trend. You could have your own. You need to painting. You can have your own identity. You buy a car. You will have your own identity. You will wear certain clothes a certain way. You will have your own identity. You are not going to be a copycat, because you want that that identity to be associated with you. लोग पहचाने आपको. And these are the people who you create trends. ये लोग trends बनाते हैं. Eventually, मैंने बोला कि मैं करूँगा. मेरे family, my sister was into corporate culture. She's still into corporate culture. She's the global brand manager of Reckitt Benckiser. The biggest opposition I got was from my sister. And मुझे गाड़ी नहीं दी गई, कुछ नहीं दी गई. मैंने बोला I want to be able to do it. मैं 1 घंटे की बस पकड़ता था. बस में जा रहा हूँ, 1 घंटे की बस चलता हो गया. I used to go to a particular center. I used to finish a book halfway there, come back, used to finish halfway there, be able to study over there. I made a decision to be able to educate myself in that regard. I carried out my bachelor's, and at the same time I was carrying my 8 years शाम को पढ़ता था. I did my MBA. At the same time I did my सुबह के 9 से 12 Masters of Islamic Studies exam देता था. 2 से 5 फिर बाद में जाके MBA के exam देता था. I was doing all together because people told me, तुम किस background से, you won't be able to do it. I said, I'm not doing it for anybody else. I'm doing it for myself. And that aspect, that's the entire story का जुज क्या है. मैं अपनी बात आपको क्यों बता रहा हूँ? Because मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ because it was something that worked for me. I gathered my strength from Allah. और जब मैंने अपनी strength Allah सुब्हान अल्लाह से gather कर ली, मुझे लोगों की परवाह नहीं रही. Because आप लोग पता है social pressure में क्यों आते हो? Because अब छोटी सी एज में जब आपको प्री नर्सरी में डाल दिया था, नहीं डालना चाहिए. मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा. आप प्री नर्सरी में डाल देते हैं, मॉन्टेसरी में डाल देते हैं. From that younger age, बच्चा ये सीख लेता है, माँ बाप छोटे से एक जगह पे ठीक है, मेरा ख्याल रखा है, और ये आउटसाइड सिस्टम जो है ना, ये शुरू से मुझे डिक्टेट करता है, इसके अंदर मुझे फिट इन होना है.
फिर वो ए लेवल्स में आता है, वो कॉलेज में आता है, वो सोसाइटी उसको ये बता देती है कि माँ बाप ठीक है डिसएग्री करेंगे ना, ये छोटा सा लॉस है, लेकिन ना सोसाइटी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैंने इसमें ज्यादा वक्त गुजारा है, तो आई विल नॉट हैव माय ओन आइडेंटिटी. बट when I was able to gather my strength, took some time off, and was able to strengthen myself, and I was able to know why I was doing it, people did not matter to me. And at that point, because nothing happens in your life randomly, I was sitting at my friend's place. And मेरे दोस्त की वालिदा ने मेरे से एक सवाल पूछा. तो सवाल क्या था? And it might not be relatable to you, but it made me take up that challenge in my life. उन्होंने बोला, Vaji, tell me one thing. Do you love Allah? I was like, मैं claim नहीं कर सकता, but I try to love Allah. Do you love the Prophet? I was like, मैं दावा नहीं करूंगा, मैं सोच के बोला मैंने, but I will try to love the Prophet. He said, why do you stop at the face? Is it because people won't accept you? I'm not saying कि ये बहुत जरूरी है फना, मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ, उस वक्त मेरे लिए था. Yes, that's exactly what's stopping me. This is exactly what's stopping me. Maybe my female friends, my social circle, and that point I made it that decision. The hell with everybody. I will do what is important in my life. I will remove those hurdles which is stopping me from being closer to Allah subhanahu wa ta'ala. It can be anything, guys. It can be some kind of addiction. It can be trying to be able to be part of a social circle just because you want to be accepted. It can be anything for you. For me, it was a challenge. For me, that social. मुझे आहिस्ता दोस्तों की preferences change होते हुए नजर आए. I stopped getting invitations, and it filtered out my friend circle for me. And you know what? When I made certain sacrifices for His religion, I made certain sacrifices. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gave me better friends in return. जो सिर्फ मुझे इस तरह से नहीं बैठते थे कि बोलते थे कि यार बच्ची आपके पास माल है, यार बच्ची आपके पास stuff है, यार बच्ची आपके पास गाड़ी है. Now Allah replaced something for me. When you fear Allah, anyone who fears Allah, anyone who leaves something for the sake of Allah, Allah gives him or her something better in return. All you have to be is patient. मैं सिर्फ आपसे ये बात बोल रहा हूँ, देखिए जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, और मैं आपको एग्जांपल की स्टडी की बताता हूँ मैकडॉनल्ड्स की. मैकडॉनल्ड्स जब भी कोई फ्रेंचाइज खोलेगा तो वो टाइम लगाएगा, वो ह्यूमन रिसोर्स लगाएगा, मनी लगाएगा, मेक श्योर करेगा कि उसने जहां फ्रेंचाइज खोलनी है वो उसको सही किस्म की प्रॉफिट देगा, और जब वो श्योर हो जाता है तो वो वहां पे अपनी फ्रेंचाइज खोल लेता है. बर्गर किंग ऑन द अदर हैंड कोई ह्यूमन रिसोर्स नहीं लगाता, कोई पैसा खर्च नहीं करता, सिंपली जो मैकडॉनल्ड्स मेहनत करता है उसके आसपास जाके अपना आउटलेट खोल लेता है, फ्रेंचाइज खोल लेता है. बट ये दो तरह के लोग होते हैं जिंदगी में. वन हु टेक अप द चैलेंज इन द लाइफ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कौन सा रास्ता सही है कौन सा रास्ता गलत है. आई एम सेइंग कि वन टाइप ऑफ पीपल जो चैलेंज लेते हैं, स्ट्रगल लेते हैं, टाइम लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, बिकॉज़ उनको पता है इस रास्ते पर कंपटीशन ज्यादा नहीं है. दूसरे वाले दे टेक द इजीयर पाथ बिकॉज़ इट्स ईजियर, समबडी एल्स हैज मेड द एफर्ट, बट उसमें कंपटीशन ज्यादा होगा. You will find a lot of competitors because majority of the people are going to take that path. Understand that you cannot be successful if you do not have these 3 D's in your life. These 3 D's in your life. और मैं अभी मुखातिब हूँ आप सबसे. Each and every individual जो यहाँ बैठा हुआ है is fighting a battle. जो आपके लिए कस्टमाइज हुआ है. अल्लाह सुब्हानहू, हम उर्दू में मुसीबत का वर्ड यूज करते हैं ना. मुसीबत अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब अरबी में यूज करते हैं ना, उसका मतलब बेसिकली होता है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट टू एकेडमिक, कि एक आर्चर है, उसने तीर खींचा और उसने टाइम लगाने के बाद उसने इशारा लगा के उसने तीर छोड़ा. जिस जगह पे तीर मारना था, जिस जगह पे तीर लगना था, where it was meant to hit, this is musibah. It was meant to come for you. It was designed for you. It was aimed to hit you. What was meant to hit you would never miss you. What was meant to miss you was never meant to hit you. But why am I saying this? Because each and every one of you is going through a battle. Maybe it's from your parents. Maybe you feel left out. Nobody understands you. You are going through certain troubles, difficulties. These struggles are designed for you for the reason that your matters are not randomly happening. Allah subhanahu wa ta'ala ने आपको पैदा करके नहीं छोड़ दिया. Allah wants you to grow
Because you cannot grow and become a better individual if you're not physically strong. But you're not only supposed to be physically strong, you're also supposed to be intellectually strong. And you cannot be just physically and intellectually strong, you have to be spiritually strong as well. And you cannot be physically, intellectually and spiritually strong, but cannot be emotionally strong. ये 4 aspects होंगे, you would become a mature individual. These struggles were not meant to bring you down. ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वसअहा, अल्लाह उतना बोझ नहीं डालता किसी के ऊपर जितना वो संभाल ना सके. Was only meant to make you grow, move to the next level, just like a video game. हर वीडियो, कोई वीडियो खेला किसी ने? क्या होता है वीडियो की हर एक स्टेज पे? एक बला होती है, एक मॉन्स्टर होता है, एक एंड की फाइनल स्टेज होती है. आप क्या करते हो देख के उस मॉन्स्टर को? क्या करते हो? किसी और को पकड़ा देते हो? मम्मी मम्मी नहीं हो रहा मुझसे. You try, you fail, you try again and again and again till you don't move to the next level. That's exactly how it is, guys, in life. आपकी जिंदगी में कोई ना कोई बला होगी. दूसरे के लिए वो बला ना हो, आपके लिए वो बला होगी. It can be financial, it can be struggling with studies, it can be struggling with certain issues with your father or your mother or anybody would be going through that issue. You need to understand, you need to pass that stage. And this is going to give you the first D. The first D in life is drive. What drives you? Because you will not be able to be at the end of your life and be a different person before you die if you don't have that drive in you. So these struggles were meant to make you have that drive, because they were not meant to bring you down but rise above them. Take these struggles as your reason, strength to be able to move ahead in life. जिंदगी में जो आराम से आ जाएगा वो आराम से चला जाएगा. जिस चीज को हासिल करोगे स्ट्रगल के साथ, वो चीज की वैल्यू होगी. एक बहुत ही स्पॉइल्ड ब्रैट बच्चा फीडू लॉर्ड का, उसने बोला कि बहुत पैसा खर्च कर रहा था, लोगों को गाड़ियों से बदतमीजी कर रहा था, बदमाशी कर रहा था. बाप थोड़ा समझदार था, बाप ने अंदाजा लगा लिया कि बेटे को मैंने जिंदगी में फैसिलिटीज देकर, सहूलतें देकर मैंने जो है उसको बहुत ही स्पॉइल कर दिया. मैंने बोला बेटा ये लो 5000 का नोट, देख रहे हो, यू अंडरस्टैंड द वैल्यू इट? हाँ बाबा, इसमें एक मेरे 4 दोस्तों के KFC का खाना आ जाएगा. बस बोला अच्छा, आई नीड यू टू डू वन थिंग, ये पैसे पकड़ो और इसको जाके वहां बाहर नाले पे फेंक दिया. नो प्रॉब्लम, पकड़ा, ऐसे लाइक फेंक के आ गए. एनीथिंग एल्स यू वांट टू डू दैट? इज लाइक एग्जैक्टली, आज के बाद तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा. दिस इज द लास्ट मनी दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम. लाइक व्हाट? You can't do that. You can't dad. आपके पैसे मेरे पैसे नहीं, आप मुझसे प्यार नहीं करते. It's like no. एक हफ्ता है, कुछ कमा के लाके मेहनत करो. ना मेरे ऑफिस आना है, ना किसी से मदद मांगनी है, ना अपने किसी सर्वेंट से मदद मांगनी है, किसी से बोरो नहीं कर सकते. Go and strive and earn it. And he was like, okay, I can do it. I'll show you. I'll prove you wrong. As like I said, he took up the channel. चला गया. उस बारे में क्या करूं. ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता. इंटेग्रिटी का मामला है, बताऊंगा मैं कितना हुआ है. जाके देखा, उसने बोला कुछ मसला नहीं है. जाके थोड़ा सा लेबर वर्क किया. उसने बोला मैं थोड़ा सामान उठा दूं. ट्रेन स्टेशन पे गया, वो किया, कर आके 1 हफ्ते के बाद 500 रुपए समथिंग लेकर आया. उसने बोला डैड ये लीजिए, दिस इज माय ब्लड स्वेट, यू नो, जो मैंने लगा के किया है. आई प्रूव्ड यू, आई कैन अर्न यू सम मनी. एंड डैड वाज लाइक वेरी वेल, कैन यू जस्ट टेक दिस मनी एंड थ्रो दिस इन द नाला? What? Why would I do that? Just throw it away. So why would I do that? मैंने अपनी मेहनत से कमाया 1 हफ्ते. Do you have any idea how I did? It's like exactly. जो आराम से आ जाता है वो आराम से चला भी जाता है. जिस चीज के लिए स्ट्रगल इन्वॉल्व होती है, उस चीज के लिए जो उसको छोड़ने में भी मुश्किल होती है, उसके अंदर छोड़ने में भी आपको जो है तकलीफ होती है. हर चीज स्ट्रगल पैसे के साथ रिलेटेड नहीं है. Your emotions, your physical development, your investment in a relationship, in marriage, when you are involved in struggle, you understand the value of it. Raising children during their tarbiyah, attaching with them is just, you are a human, you're not a robot. You're not a robot. कि आपने बस एक जिंदगी आगे, माँ बाप आगे, माँ बाप के साथ आपने एक पर्सनालिटी डेवलप की है. So if you don't have that drive in you, जिंदगी में अगर ड्राइव नहीं है ना तो आगे तक नहीं चलोगे. सुसाइडल हो जाते हैं, लोगों को बहुत पैसा मिल जाता है. जिम कैरी कहता था
कि जो हॉलीवुड का एक्टर है, मेरी दुआ है कि हर किसी के पास $1 million आ जाए, so that they know this is not their entire purpose. Because you climb the entire mountain to be able to reach the top of it, and you realize, yeah, I wasted my entire life for something which was, not worth it. And Pursuit of Happiness, one movie I always quote it. Pursuit of Happiness. How many of you watched it? Pursuit of Happiness. It's a true story, right? वो बंदा कहता है यंग एज में से बोला मैं दोस्तों को छोड़ा हूँ, अब्यूजिव पेरेंट्स लड़ रहे होते हैं, आई नीड टू बी अवे फ्रॉम रिलेशनशिप्स गाइस, आई नीड टू, उसने कॉर्पोरेट कल्चर को छोड़ दिया, उसको बोला मैं बैक पैक पकड़ता हूँ. सो मेनी ऑफ अस थिंक ऑफ रनिंग अवे, राइट, और हैव थॉट ऑफ रनिंग अवे. ठीक है, अम्मी मुझे वो PS2 दे के दे दिया, नहीं बेटा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, दिस वाज माय रेगुलर छोटा सा था मेरा, अम्मी मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, दे लिया होगी अम्मी आपकी मूवी. तो अम्मी ने एक दफा जब सिखा दिया ना कि बेटा क्या होगा, तो उसके बाद मैंने नहीं बोला घर जाके छोड़ दिया. बट वी ऑल ऑफ अस somehow the other want to be able to run away. Yeah, plane पकड़ो, travel करना, if money was not my concern, I would do something which I would be passionate about. He ran away. And he ran away, उसने time गुजारा, he was enjoying it, he met a lot of people, रास्ते में उसको मूवी के साथ उसको प्यार मिला. But he's like no relationships, no strings attached, I need to be free from it. That is the reason मैं भागा हूँ. उसको एक बूढ़ा आदमी मिला, उसने बोला कि मैं आपको बेटा बनाने की तैयार हूँ, मेरा बेटा नहीं है, मैं आपको अपनी जायदाद दे दूंगा. It's like I really appreciate it and love you for it, but I want to be away. उसने बोला देखो कि जान नहीं छूट रही लोगों से, जंगल में जाके रहना शुरू कर दिया. जंगल में जाके रहना शुरू कर दिया, वहीं शिकार करता, मीट को प्रिजर्व करने की कोशिश करता, साथ साथ जो है उसने किया. उसकी आंखें कमजोर थी तो उसने he lost his glasses if I remember exactly. एंड उसने जो ना फिर बाद उसको भूख लगी तो थोड़ा डार्क मगरिब का वक्त हो रहा था, तो उसने कुछ बेरीज या फ्रूट्स खा लिए. उसकी बाद में तबीयत खराब होने लगी तो उसने अपनी डायरी खोल के देखी, उसने देखा, उसने रियलाइज किया उसने पॉइजनस बेरीज खा ली थी, जहरीली बेरीज खा ली थी. एंड उन्होंने तो सिनेरियो किया क्योंकि लास्ट पिक्चर जो उसकी मिली थी मरने से पहले, वो अपने केबल के सामने खड़ा हुआ था जहां उसने अपने शावर वगैरह सब बनाया था, उसने लास्ट सेल्फी ली थी अपनी. तो उसने उसका सीन दिखाया था कि वो ही वाज लाइंग ऑन द बेड